Hello, good evening, everybody. I welcome you all to the fifth class of our current affairs series. So, I know you guys are having a holiday today, but again, it was scheduled long time back, and you get this recorded version. So, without getting delayed, let's get started. Few things I would like to tell you is that your timetable is already there. What are we going to do from next online classes? Is that we are going to focus more on the PYQs. So, I'll be taking, say, PYQs from preamble chapter, or I'll be taking PYQs from some geography chapter, or maybe first from some economics chapter, and we'll be discussing that along with the solutions and how many times the question has been repeated in the exams, different exams, both from ND and the CDS point of view. But having said that, there's a lot of demand for current affairs. So again, when you're listening to this lecture, just remember a few things कि आपको कैसे करना है ये. तो पहला चीज, take out your copy, write down the only the important points which I ask you to, and put it up in your copy, and then give the test whatever we send it to you on the chat. So let's get started. Mahatma Jyotiba Phule. So he was a social reformer. When you're studying the modern history section, where you will be talking about a lot of social reformists like Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati. So Jyotiba Phule also holds the same stance like these people. So Jyotiba Phule specifically fought for the caste system that prevailed in India, as you know about. We have Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. So he particularly fought for them and the injustice that were happening against the Shudras, or the lowermost caste class. He was also a champion educationist. So he promoted education system that was not very prevalent at that time, and he also fought for equal rights of women. Now, he also wrote one of the very famous books called the Gulam Giri, that exposes the horrors of caste discrimination. So, what were the challenges faced by these lower caste people by the upper caste? He mentioned all these things in this book called Gulam Giri. So, if a question is asked, Gulam Giri is written by which social reformer? So, it's basically Jyotiba Phule. He also wrote Shetakcharya Asud to highlight the exploitation of farmers, whatever the challenges farmers were facing. So he wrote two books, Shetakacharya Asud and Gulamgiri. Very important, you can write it down. One more important point that you have to remember from the Jyotiba Phule point of view is that his wife Savitri Bai Phule was the first person. He opened India's first school for girls. So, along with the help of his wife, Savitri Jyotibai Phule, he opened the first school for girls. So that time there never used to be girls' schools. Only the boys used to go to the schools. So, along with the help of his wife, he started the school, and this was in Pune. So again, a very important point. So Jyotiba Phule, Savitri Bai Phule opened the first school for girls in Pune in the year 1848. This year, and why this person is currently in news, because last month was the 175th anniversary of this school particularly. He also established a Satya Sodhak Samaj, truth seeker society, to bring about social change. Whatever the caste discrimination were there, in order to get rid of those systems, he started this Satya Sodhak Samaj. So, last but not the least, he laid the foundation for the future social justice leader like B.R. Ambedkar. So, B.R. Ambedkar derived very so many ideologies what he used to preach from the legacy that was bought by Jyotiba Phule. So, the 4 points that you have to remember from this particular section is that Jyotiba Phule first of all fought for caste discrimination, and he was a champion of equal rights for women. He wrote two books. What are the name of the books? Gulamgiri for caste discrimination and Shetakacharya Asud for the farmers' exploitation. Along with his wife, he started his school. His wife name was Savitribai Phule, first girls' school in Pune, and he also established a Satya Sodhak Samaj, Truth Seeker Society, to bring about social changes. Now, this another news that was there is CDP Suraksha. Now, what is CDP Suraksha? CDP is a digital platform that quickly sends subsidies to farmers for horticulture. Now, what are subsidies? If you know, or if you remember when you were discussing the economics class,
we used to discuss that factor cost and market price का एक concept था. What are factor costs? So there are four factors of production, as you know: land, labor, capital, and enterprise. And the payment which is done to them is in the form of factor cost. So land is paid in the form of rent, labor in the form of wages, capital in the form of interest, and enterprise in the form of profit. Now, when you add up the total, whatever the price is, this is together called as the factor cost of manufacturing a good. So, say for example, if the factor cost of manufacturing the pen is, say for example, 8 rupees, you have to remember that you will not get this particular pen at 8 rupees. You will get it at somewhere around 15 rupees. Why? What the government does is government adds taxes on this pen and government reduces the subsidies, or you get you get certain kind of subsidies. So on the factor cost, when you add the tax and deduct the subsidies, you get the market price. So what is CDB now? CDB is a digital platform that sends subsidies. So whatever the subsidies that farmers from horticulture are basically related to fruits and all vegetables. So whatever the farmers are growing these fruits and vegetables, the it's a platform where you can get subsidies for this type of farming. Now it uses e-rupee vouchers like digital coupons from NPCI. Now how do you get the subsidies? You will get a e-rupee voucher kind of a thing. It's a digital coupon from the NPCI, and once you enter that digits, the money will be credited in your account. Now, who uses the CDP Suraksha? So, farmers, sellers of farming supplies, government agencies that run program, local government groups, and National Horticulture Board officials. Now, what you have to remember, what is CDP Suraksha? It's a digital platform for sending subsidies to farmers for horticulture. So as you can see, this was in the news. CDP Suraksha, new government digital platform to disburse subsidies to horticulture. Now this was in the news, so I have picked up the article from there. Why it matters? Because it helps horticulture sector. This sector, which includes fruits, vegetables, and flowers. So horticulture consists of fruits, vegetables, and flowers that are grown, and it's a big part of our agriculture economy. For other part of agricultural economy, farmers get MSP, minimum support price. But for this sector, like in the area of fruit, vegetables, and flowers, this system has been started, CDP Suraksha, where they're getting subsidies to these farmers. What are the key features? Uses the now what database? PM Kisan database they will use. Securely stores information online, so all the information about the farmer, name, address, everything is stored online on a cloud-based system. Verified IDs are there to prevent fraud. Somebody who's trying to present himself as a genuine person, but he's not a genuine person. So verification through IDs are done. Use of e-rupee vouchers are for safe and direct payments. So there is no middleman and there is no scope of corruption as such. There can be, but it's limited. And location you can track to ensure subsidies are used correctly. So geotagging methods and geofencing methods are used. Coming to next term, which was there in news, basically is doxing. Now you must have heard about boxing because of this recent match held between boxing match that took place between Logan Paul, and this guy called Mike Tyson. Now that's boxing. This is doxing. Now what is doxing? What can it do? So doxing involves gathering private information about an individual like address, phone number, social security details, and then releasing that information online, often with the goal of harassment or intimidation. So your private informations like your photos, your address, or maybe your phone number is gathered and it's shared with people around. So and you will start getting fake calls, harassments and all these things. Now, doxing allows abusers and criminals who are thousands of miles away from the target victim by putting their private details online for others to exploit. So, this was in news, the word doxing. So, doxing is related to a practice of gathering information about an individual and then using that information to harass the person. Now, the other news that was there is National Green Tribunal takes cognizance of complaints that sanctity of Tiger Hills is being violated. So, National Green Tribunal, your tribunal is related to the court systems that we have. Now, all the environmental related problems are solved by this National Green Tribunal. Now, what was there in the news? So, there is a place, Tiger Hills. There was the sanctity was being violated. Now, Green Tribunal has issued certain kind of notices. Now, what is NGT? We have to see from the exam point of view. It was established under the Act, so it's a statutory body, not a constitutional body. Next is principles, places of sitting. So, where the benches sit is it sits in Delhi.
with additional sitting benches. और कहाँ कहाँ उनकी benches हैं? It's in भोपाल, पुणे, कलकत्ता and चेन्नई. जो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हेड्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट एवरी 5 years में होता है, just like our government changes every 5 year. So what is the composition of this national? So there is one chairperson appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India. Recently, only the Chief Justice got changed. You can write down in the comments what is the name of the recent Chief Justice. The judicial expert members appointed by the selection committee formed by the central government. So this is not required. Consist of minimum of 10 members. This is an important fact, and maximum of 20 full-time members. So what are the important facts? It is a statutory body established under the NGT Act 2010, and 5 years eligibility is there, and for they can be reappointed again, the people. And there is a sitting benches in Delhi, and other 5 benches are in Bhopal, Pune, Calcutta, and Chennai. Now the chairperson is appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India. Powers are tasked with expeditious disposal of cases. तो जो भी cases related होते हैं environmental protection से उसको solve करने के लिए या and conservation of natural resources से उन cases को सुनने का काम करता है. Not bound by civil code of civil procedure 1908 but guided by principle of natural justice. Now ये चीज जब हम लोग पॉलिटी में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो फिलहाल ये पॉइंट याद रख लेना. तो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है जो भी हमारे कानून लिखे गए, बट अपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ये काम करता है. नेक्स्ट आता है सेंटर टू सेट अप डेडिकेटेड टेस्ट लैब्स इन 6 states फॉर कस्तूरी कॉटन ग्लोबल ब्रांड पुश. तो कस्तूरी कॉटन को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए सेंटर ने क्या किया? 6 लैब्स बनाई है. द लैब्स सेट इन कॉन्वर्जेंस विद बिस. तो बिस एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये मेंटेन करता है कि चीज़ों की स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, कॉटन का, जूट का, मल्टीपल आइटम्स का. तो वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज बनाएगा, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. तो बिस के साथ कन्वर्ट करके आपका सेंटर ने 6 लैब बनाने की बात करी कस्तूरी कॉटन को ग्लोबल ब्रांड पुश करने के लिए. तो कस्तूरी कॉटन आपका, कस्तूरी कॉटन भारत स्पिरिचुअल फाइबर भी बोला गया इसको, सॉफ्टर, स्ट्रॉन्गर एंड प्योरर. तो अगर ये आता है कि स्पिरिचुअल फाइबर किसको बोला जाता है एग्जाम में, तो इट्स कस्तूरी कॉटन. ओरिजिन कहाँ होता है ये भी जान लीजिए, आंध्रा एंड तमिलनाडु में. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट? नेचुरली वाइट होता है कलर में, मॉइस्चर वीकिंग प्रॉपर्टीज होती है, ड्यूरेबल है एंड सॉफ्ट है, पॉपुलर फॉर चॉइस. तो ऑब्वियसली अब आप नॉर्मल किसी कॉटन की बात करोगे और कस्तूरी कॉटन की बात करोगे, तो जब नया कुछ चीज आ रहा है तो उसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बेटर होगा ही. तो क्या हो सकता है? सॉफ्टर हो सकता है कॉटन, और स्ट्रॉन्गर हो सकता है, और प्योर हो सकता है, मिक्सअप नहीं हो. पॉपुलर चॉइस और प्रीमियम टेक्सटाइल, तो अच्छे अच्छे कपड़े बनाने के लिए, प्रीमियम टेक्सटाइल बनाने के लिए यूज होता है. एंड स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशंस एंड केयरफुल हार्वेस्टिंग टेक्निक्स रिक्वायर्ड. तो बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव है बोल के इसलिए स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए और केयरफुल हार्वेस्टिंग भी चाहिए. दो चीजें याद रख लेना, 6 स्टेट्स में कस्तूरी कॉटन के लिए एक सेटअप किया जा रहा है आपका टेस्टिंग लैब. मिलता कहाँ है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में. स्पिरिचुअल फाइबर भी बोला जाता है, जो स्ट्रॉन्गर है, सॉफ्टर है एंड प्योरर है. नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, just want to remind you this. As you can see here, your exams are just around the corner. So ND exam will be on 13th April, not many days left, and the forms will be out in the month of very soon. So again, time to buck up and start studying for this particular day. Now India's Pratyush among the telescope astronomers want to put on. Just hold on. Yeah. So India's Pratyush among the telescope astronomers want to put on the moon. So there's a name called Pratyush. It's a telescope basically that the Indian astronomers want to put it on the moon. So moon-based instruments have better chances of spotting weak signals from the universe dark ages.
they want to spot some kind of weak signal. Now you just have to understand what is Pratyush. It's a telescope that Indian astronomers are planning to put on around the moon. Now what it is, it's the full form is probing ionization of universe using signal from hydrogen. So Pratyush is related to hydrogen. A special radio telescope help us to explore the very early universe. Where it is going, it is placed on the far side of the moon. Very very important point. Far side में डाला जाएगा where it is quite and there is no interference from the earth. क्या डिटेक्ट करेगा? फेंट सिग्नल डिटेक्ट करेगा फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज फॉर्म्ड आफ्टर बिग बैंग. द पीरियड इज कॉल्ड एज कॉस्मिक डाउन. हु बिल्ड दिस? किसने बनाया था? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर वर्क विद इसरो के साथ मिलकर बनाया था. हाउ इट गेट्स देयर? फर्स्ट इसरो विल लॉन्च इट इनटू द ऑर्बिट आफ्टर इन अर्थ फॉर टेस्टिंग. Then it will be sent to the moon. Why it is important? Help us to understand the first stars formed and what kind of light they produce. Again, this theory you can read it once. Has a special antenna. Again, all these things are new. So just have to remember what is Pratyush is, where it is going to get placed, and what is this cosmic down and the hydrogen, the involvement of hydrogen. What is the involvement of hydrogen there? That's it. What is the purpose? Now, India plans to make carbon fiber in response to EU carbon tax. So, EU ने जो carbon tax लगाया उसके response में India is planning to make carbon fiber. Now, what is this fiber? It looks somewhat like this. So, it is super strong, thin thread made of carbon atoms linked together. Very stiff and strong, can handle high temperatures, do not expand on heat, resist chemicals, lightweight. Where India gets it? So अभी तो import हो रहा है US से, जापान and जर्मनी से. Makes things strong and like parts of planes, drones में यूज कर सकते हैं, कार्स में यूज कर सकते हैं. तो कार्बन टैक्स जो लगा रही थी कार्बन पोल्यूशन की वजह से यूरोपियन यूनियन, उसको ऑल्टरनेटिव निकालने के लिए इंडिया ने कार्बन फाइबर बनाने की बात की है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा. नाउ एक इंडियन कैलेंडर था न्यूज में, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं. तो नेशनल कैलेंडर है जैसे जनवरी टू दिसंबर, अपना थोड़ा डिफरेंट है. नाउ 12 कैलेंडर्स, 12 मंथ्स. चैत इज द फर्स्ट मंथ, ये रहा चैत्र, एंड लास्ट मंथ इज फाल्गुन. ना चैत इज बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च, जो हमारा 22 मार्च से स्टार्ट होता है अगर हम इससे कंपेयर करें. फिर आता है वैसाख जो 21 अप्रैल से होता है. फिर ज्येष्ठ 22 अप्रैल. फिर असद, अष्टा 22 जून, 23rd. तो ऐसे करके ये आपका कार्तिक, फौस, माघ ऐसे करके चलता. तो हम लोग ने जनरली इस कैलेंडर के बारे में सुना. ये हम लोग का लोकल इंडियन कैलेंडर है. सो सिविल पर्पस के लिए ऑफिशियल यूज कर सकते हैं. साका कैलेंडर इज ऑफिशियली यूज्ड फॉर इंडियन सिविल पर्पसेस. ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं. ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडियन रेडियो आर गिवन विद द साका कैलेंडर. तो जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं हमारे, वो इसके कैलेंडर के हिसाब से दिए जाते हैं. गजेट्स, गवर्नमेंट गजेट्स आर पब्लिश्ड विद साका कैलेंडर्स. गवर्नमेंट के जो भी गजेट्स होते हैं. नेशनल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स भी इसी कैलेंडर के थ्रू मिलाए जाते हैं. कल्चरल रिलीजन यूज किया, हिंदू फेस्टिवल को शेड्यूल करना है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को, एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को, कल्चरल एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को. सो ऐसे चलता है. 22 मार्च से स्टार्ट होता है, याद रखना. एंड चैत्र एंड लास्ट मंथ होता है फागुन, जो फरवरी 20 को खत्म हो जाता है. इंडिया को बाय द वे री-इलेक्ट कर लिया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में विद हाईएस्ट वोट. सो आईएमओ क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है जो काम करती है शिपिंग में सेफर एंड क्लीनर. तो जो शिप्स एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है वो सेफ हो और क्लीनर हो, उसके लिए काम करती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि ऑयल स्पिलेज हो जाता है, और पायरेसी को कंट्रोल करने के काम करती है आईएमओ. यूनाइटेड नेशन की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है. 1948 में स्टार्ट हुई थी. 1959 में यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन गई थी. 175 मेंबर्स हैं. ऑल द मेंबर्स मीट हर 2 साल में मिलते हैं. 5 कमेटी है इसके अंदर. एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लंदन में. तो ये याद रख लेना आप. एंड मेंबर कंट्री पे ड्यूज एंड इट आल्सो गेट्स मनी फ्रॉम डोनेशंस एंड बिजनेस एक्टिविटी. तो इंडिया को इलेक्ट किया गया है, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. नाउ अगेन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग. आरबीआई कंपाइल्ड मास्टर्स डायरेक्शन ऑन एआरसी टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 24 अप्रैल. नाउ व्हाट इज एआरसी? एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी. तो ये क्या करती है? जैसे कोई बैंक ने आपको लोन दिया, से फॉर एग्जांपल ये बैंक है, इसने आपको लोन दिया 1000 रुपए का, मगर आपके पास बिजनेस किया आपने, वो बिजनेस में सारा पैसा डूब गया, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाया. अब ये बैंक के लिए तो आपको जो लोन गया ये आप तो लौटा नहीं पाओगे. तो ये क्या हो गया? बैंक के लिए एक एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अब वो क्या क्राइटेरिया था? वो जो हम लोग इकोनॉमिक्स देखेंगे, लोन का चैप्टर पढ़ेंगे, आपका इसका चैप्टर पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम का, तब मैं आपको बता दूंगा. बट फॉर द टाइमिंग रिमेंबर, एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ऐसे एसेट जो लोन जो दिए जाते हैं मगर वो लोन लौट के नहीं आया.
नाउ व्हाट दे हैव डन इज एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं, जो ये बैड लोन्स हैं या जो एनपीएस है बैंक के, सपोज कोई बड़ा बैंक है उसके कोई एनपीए हो गया, उसको क्या करेगी, वो खरीद लेती है ये जो एसेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। और इससे क्या होता है, बैंक के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अब इसका जो बैंक ने जो लोन दिया था ये लौट के नहीं आया तो बैंक का बैड लोन हो गया, तो इसका अब ये इसका मतलब परफॉर्मिंग एसेट नहीं है ना, ये आपको लोन दिया, बैंक लोन क्यों देता है, ये सोच के कि आप 1000 रुपए दोगे, आप 1200 रुपए लौटाओगे, 200 रुपए का बिजनेस करेंगे, बट जब पैसा नहीं आया तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो उस चीज को उनकी रिकॉर्ड खराब हो गया बैंक का। तो अपने रिकॉर्ड को खराब करने के लिए मेन जॉब जो है इनका लेंडिंग का, इसको सही रखने के लिए क्या करते हैं, ये जो खराब लोन है जो इस पे पैसा लौट के नहीं आया, ये किसी को दे देते हैं। अभी किसको देते हैं, ये बेसिकली कंपनीज होती हैं जो इन खराब लोन को खरीद लेती हैं कुछ पैसे देके। सपोज 1000 रुपए का लोन दिया था और 1200 रुपए आने थे, तो ये एक एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बोलेगी बैंक को एक काम करो, तुम मुझसे 800 रुपये ले लो, और ये जो लोन जिसको तुमने दिया था मैं इससे डील कर लूंगा डायरेक्टली, तो वो उससे डील करती है फिर, मोटा मोटी समझाने जाऊँ तो बैड लोन्स चले जाते हैं एंड अरेंट बीइंग रिपेड एंड फ्री टू बैंक्स टू फोकस ऑन लेंडिंग बिजनेस, और बैंक फिर दोबारा फोकस कर सकता है। बैंक सेल these bad loans to ARC at a price they both agree upon. ARC then try to recover the money owed by the on those loans. और ये जो ARC जो एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं जो ये बैड लोन को खरीद लेती हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा आरबीआई के साथ। कैन नॉट लेंड मनी देमसेल्फ, खुद मनी लेंड नहीं कर सकती है, और अलाउड टू हैव 100% फॉरेन डायरेक्ट, और ये इन लोग का क्या है, फॉरेन डायरेक्ट बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है एआरसी के लिए वो पूरा आ सकता है। समझ में आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एआरसी जो है वो अगर किसी किसी ने लोन ले लिया, मैंने लोन ले लिया 1000 रुपये का, मेरा लोन अब मेरे को चुकाना है, तो मेरी जो एआरसी, अगर मैंने कोई ऐसी कंपनी बनाई जो एसेट को खरीद सकती है बैंक से, मेरी कंपनी के पास बाहर से भी पैसा आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बैन ऑन एमडीएच एवरेस्ट प्रोडक्ट, तो आपने सबने खाया होगा एमडीएच के मसाले, एवरेस्ट के मसाले। स्पाइसेस बोर्ड ने मैंडेटरी कर दिया टेस्टिंग ऑफ कंसाइनमेंट टू सिंगापुर हांगकांग। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है मसालों का, जैसे हल्दी हो गया, गरम मसाले हो गए, आपका चाट मसाला हो गया, ये सारे मसालों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी है, एंड ऑलरेडी सॉट डिटेल्स फ्रॉम फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स ऑफ सिंगापुर एंड हांगकांग। तो हांगकांग ने एंड सिंगापुर ने क्या किया, बैन लगाया एमडीएच एंड एवरेस्ट प्रोडक्ट्स पे, which has banned certain species of MDH and Everest due to quality concerns. जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है वो क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इंडिया स्पाइस इंडस्ट्री, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है इंडिया की स्पाइस इंडस्ट्री को। व्हेन इट इज यू स्टार्टेड 19, तो स्पाइस बोर्ड ने लगाया इसके ऊपर बैन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता, फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता। उसके बाद helps to help spice exporters in India to sell their products to other countries, help spice farmers and businesses with training and support, ऑर्गेनिक स्पाइस फार्मिंग को प्रमोट करता है, सपोर्ट स्पाइस इंडस्ट्री नॉर्थ ईस्ट, इंप्रूव करने की कोशिश करता है क्वालिटी ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्पेशली कार्डमम को। ये सारा काम है। नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं लाकाडोंग टर्मरिक, तो ये एक टर्मरिक थी न्यूज़ में, क्या है ये भी देख लेते हैं। सो कच्ची हल्दी बेसिकली जिसको बोलते हैं, कच्ची हल्दी आप लोगों ने सुना होगा, इस टाइप से कुछ दिखती है। अब इसको क्या मिला है, जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा किसी जोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है। तो लाकाडोंग जो टर्मरिक है ये आपकी मेघालय की टर्मरिक है, और गारो दाकामंडा या लरनाई मतलब ये मेघालय में पाई जाती है टर्मरिक, और गारो दाकामंडा और लरनाई पॉटरी को भी जीआई टैग मिला है। ये सब मेघालय के आइटम्स हैं। एक स्पेशल टाइप की टर्मरिक है, मेघालय में पाई जाती है, जिसकी बहुत क्वालिटी है, हैज लॉट ऑफ curcumin, a good stuff for turmeric, grown without chemicals, darker color, जैंतिया हिल्स में पाई जाती है मेघालय के। सिग्निफिकेंट क्या है, हेल्थ के लिए बहुत मतलब एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, इन्फ्लेशन को, स्वेलिंग को कमाती है, हेल्प विद पेन, आई प्रॉब्लम एंड किडनी हेल्थ, मेटाबॉलिक इश्यूज जो भी हैं ये सब इनको ठीक करती है। सो लाकाडोंग टर्मरिक याद रखने से हो जाता है आपका मेघालय से। आगे चलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। नाउ इकोनॉमिक्स में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। whenever someone tries to save more money at the same time it actually hurts the economy। तो कहने का मतलब है सोचो सोसाइटी में रिसेशन आ गया था, मैंने आपको बताया था रिसेशन आ गया था, यानी कि डिमांड या ग्रोथ कम हो गई थी। अब सरकार को क्या करना है, अब
ऑब्वियसली सी बात है ना, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, तभी तो वो लोग चीज़ों को जाके खरीदेंगे दुकान से, तभी तो उनकी डिमांड बनेगी। बिकॉज डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, इवेंचुअली क्या होगा, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, यानी कि दिस इज पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी। मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था, मनी सप्लाई आने से लोगों के पास में, लोगों की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है चीज़ों को, गुड्स को कंज्यूम करने की। ताकि जब उन डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, इवेंचुअली मार्केट में इसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। सप्लाई बढ़ाने से क्या होता है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन से लोगों के पास और पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो डिमांड जब बढ़ जाती है तो क्या होगा, चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा, और इवेंचुअली जो रिसेशन में जो हम लोग घुसे थे वो रिसेशन से बाहर निकल आएंगे। तो ये मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, मैंने आपको उस दिन बताया था, गवर्नमेंट क्या करती है, लोन्स को सस्ते कर देती है, लोन्स का जो इंटरेस्ट है उसको कम कर देगी। सो से फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में मैं 100 रुपये का लोन लेता हूँ और सरकार उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगाती है। बिकॉज रिसेशन आया हुआ है तो सरकार ने क्या किया, 100 रुपये के लोन पे 1% ही इंटरेस्ट लगाया। तो क्योंकि इसके ऊपर जो मेरे को पहले जो 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये देने पड़ रहे थे, अब मुझे सिर्फ 1 रुपया देना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अब लोन्स ज़्यादा लूंगा एज अ कस्टमर, तो मेरे पास मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड, मैं ज़्यादा डिमांड पर करूंगा, डिमांड करूंगा तो इवेंचुअली प्राइस बढ़ जाएगा और रिसेशन से बाहर निकल जाएंगे। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या कहता है, जब हम लोग सरकार इंटरेस्ट रेट को कम करती है तो लोग बाग क्या करते हैं, ये पैसा निकाल के सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं रैदर देन स्पेंडिंग। वो डिमांड नहीं करते, वो उसको सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, ऑलरेडी मार्केट में रिसेशन आया हुआ है और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट भी कम है, और लोग बाग सेविंग भी कर रहे हैं, उसमें खर्च नहीं रहे, तो वो इकोनॉमी के लिए और खराब होता है। तो वही यहाँ पे बता रखा है, इफ पीपल सेव मोर दे स्पेंड लेस। अगर ज्यादा सेव करेंगे तो खर्चा कम करेंगे। लेस स्पेंडिंग मीन्स लेस बिजनेस, अगर कम खर्चा करेंगे तो मतलब कम बिजनेस हो रहा है सोसाइटी में। बिजनेस देन प्रोड्यूस लेस एंड इवन ले ऑफ वर्कर्स, और क्योंकि बिजनेस कम प्रोड्यूस करें चीजों को, इसलिए क्या करते हैं, वो वर्कर्स को भी निकाल देते हैं। वर्कर्स मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया सोसाइटी में, एंड बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया लीड्स टू फ्यूअर जॉब्स एंड लेस ओवरऑल इनकम, मीनिंग पीपल एंड अप सेविंग लेस इन द लॉन्ग रन। और उससे लॉन्ग रन में क्या होता है, लोगों के पास पैसा कम है तो वो कम बचाना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइप की सिचुएशन को पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं। व्हाट्स गुड फॉर एन इंडिविजुअल सेविंग मनी माइट नॉट बी गुड फॉर द होल इकोनॉमी। तो इंडिविजुअल के लिए अगर पैसा सेव करना है, मगर होल इकोनॉमी के लिए पैसा सेव करना सही नहीं है। इवेंचुअली उससे क्या आएगा, मार्केट में मंदी आ जाएगी। ये पहली बार मेंशन किया था 1714 में जॉन मिनार्ड केन्स, जो एक इकोनॉमिस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेविंग टू मच कैन मेक रिसेशन वर्स, और ज्यादा सेव करोगे तो रिसेशन और खराब होता चला जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या कहता है। क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग चीज है। इसमें क्या याद रखोगे, नोट्स बना लोगे, क्या श्योरिटी आएगा कि नहीं, मगर पीवाईक्यू करोगे तो आप रिलेट तो कर पाओगे, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना। तो नेक्स्ट क्लास इज ऑल पीवाईक्यूज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एयर एक्सरसाइजेस। तो अभी रिसेंटली कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट, तरंग शक्ति इंडिया की मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, किस के बीच में होती है, बिनाइल एक्सरसाइज है, 2 बार होती है, होस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। इंडियन की डिफेंस कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए ये एक्सरसाइज लॉन्च करी थी, तरांग शक्ति नाम है इसका। उद्र शक्ति क्या है, जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। उद्र शक्ति एंड तरांग शक्ति मल्टीनेशनल है, और उद्रा शक्ति दो, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। अब लैंड की एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या क्या है। लैंड की एक्सरसाइज में एक पर्वत प्रहार है, जो इंडियन आर्मी ने लद्दाख में भी करवाई थी। एंड क्या दिखाया था, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में कैसे ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। तो हम लोग को पता है इंडिया चाइना के साथ सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो एक्सरसाइज पर्वत प्रहार। फिर एक मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका की एक्सरसाइज है, एक्सचेंज स्किल्स करते हैं। तो एज यू नो ये तो बहुत बार अपन ने पढ़ चुके हैं। मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है, कंडक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया कंडक्ट करती है मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड ऑपरेट इंटर ऑपरेबिलिटी। सो मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम पार्टनर एमपीएक्स इंडिया रशिया के बीच में। खान क्वेस्ट लैंड एक्सरसाइज अगेन। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज उलन बतार में हुई थी मंगोलिया में, इंडियन आर्मी ने पार्ट किया था। फिर आगे चलते हैं, आपका रूमी 1। सो इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, उसको दोबारा यूज कर सकते हो। डेवलप किसने किया था, स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर। कहाँ से लॉन्च किया है, थिरुवंदाई चेन्नई से लॉन्च किया है। 3 क्यूब सेट्स हैं। अगेन ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये बस ये रूमी 1 क्या है, इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड
रॉकेट है, दैट्स इट। एक फैक्ट याद रखना, ये कचरा जंक मत डालना अपने दिमाग में। हाइब्रिड रॉकेट इंजन है, एडेप्टेबल लॉन्च एंगल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नॉट रिक्वायर्ड। रॉकेट थोड़ी उड़ाओगे। बस इतना याद रखना, रूमी वन इंडिया फर्स्ट यूजर, मैं इसलिए करंट अफेयर्स की क्लास नहीं कराता हूँ। सो एनीवेज, रूमी वन इज जस्ट इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट। किसने बनाया? तमिलनाडु की स्टार्टअप ने। और लॉन्च कहाँ से किया था? इतना याद कर लेना भैया, चेन्नई में। उससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा आपसे, ऐसा कुछ दिखता है। So now we have come to the end of our class. This was it from my end. Few things I would like to tell you is that if you are here till now, congratulations, you have done a great job. 90% of the people must have left, but only the 10% who are till now here are going to make it to the final list. So don't worry, if you have put in that hard work, you are going to change your life. First. Second thing, this week it's going to be important. We are going to add some current affairs classes. I'll be giving you some notes. Plus the online classes will be shifted to PYQ model. सो PYQ मॉडल से आपको चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी, और आपको ये भी समझ में आने लग जाएगी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप उस तरह से प्रिपेयर करोगे। हम लोग एक ही चैप्टर उठाएंगे, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू टेक द क्लास एवरी डे। एंड इवेंचुअली जो टेस्ट का जो हम लोग का जो रहता है, वो एक प्रोसेस, उसको तो फॉलो करना ही है। सो इसी के साथ आई टेक योर लीव। All the very best. Start working hard, my dear. Time is less, and I want to see all of you clearing this exam. Take care. Good night. Bye bye.